Welcome back to the channel. So today we are going to do the further parts of corporate governance. इसकी 2 classes हो चुकी हैं and this is the 3rd class of corporate governance. So first part for today is corporate governance and family businesses. Okay. So first of all आपको पता ही होगा कि family businesses क्या होता है. It's quite common but still हम bookish language में इसका definition पढ़ लेंगे कि क्या होता है. A family business refers to a company where the voting majority is in the hands of controlling family. Okay, maximum जो voting power होता है वो controlling family के हाथ में होता है, including जो भी founder होता है, okay, who intend to pass the business on to their descendants. The term family business, family firm, family company, family owned businesses, family owned company and family controlled company will be used interchangeably throughout the handbook to refer the family businesses. Okay, देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बट द बेसिक एग्जाम्पल आपका अंडरस्टैंड करने के लिए कैन बी रिलायंस ऑफ अंबानी, बिरला, ये सब आप माइंड में रख के इस चैप्टर को पढ़ सकते हो ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके सब कुछ. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन फैमिली ओन्ड कंपनीज इन इंडिया. ओके, सो फर्स्ट, full-time directors, other directors and senior management personnel are either from family or related to family. Basically जो top levels managers होते हैं, directors होते हैं, या तो वो family के होते हैं या तो related to family होता है. Formation of coterie is common. So basically coterie का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने में ही काम करना पसंद करते हैं रादर देन इंक्लूडिंग मोर पीपल आउटसाइड. आप एक बार इसको खुद भी सर्च करोगे, रीड करोगे ना, जब इसका डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगा. सो फैमिली बिजनेस में यही होता है कि ज़्यादा और बाहर के लोगों को इंक्लूड करना नहीं चाहते हैं. ओके, मेनी टाइम्स इट हैपन्स. नेक्स्ट, control and ownership is diluted with shareholding being diluted on the pass of generation. conflict of interest भी बहुत common हो जाता है जब promoter का अपना interest अलग हो जाता है कंपनी का interest अलग हो जाता है, differences आने लग जाते हैं. ओके, emotions बहुत ज़्यादा attach हो जाता है जब family business का बात होता है तो. Where the family members are united, the non-family members, managers are defunct in decision-making process. Where family is divided, there are more problem like confusion हो जाता है leadership को लेके, delay हो जाता है decision-making को लेके. So ये सब problems भी आती हैं. Some families have clear-cut roles of the family members in the business with structured succession planning, allotment of each company to each member to avoid conflict. So conflict ना हो इसीलिए easily सबका जो भी role है वो define कर दिया जाता है. Okay. Personal image of chairman, MD, director is very important which determines the reputation. आप जानते ही हो ये चीज़. Many hardcore professional avoid working in family businesses for ऑब्वियस रीज़न. आप जानते ही हो कि क्योंकि फैमिली का बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस हो जाता है. डेथ, डिसेबिलिटी ऑफ सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली रिजल्ट टू लीडरशिप मैनेजमेंट क्राइसिस भी हो जाते हैं. आप जानते हो ये सब चीज़ें. नेक्स्ट इज emerging issues in corporate governance in family managed companies in India. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट. इन फ्यू कंपनीज इन इंडिया जो मेन प्रोमोटर होते हैं या ओनर होते हैं वो अब इन्वेस्टर बनना चूज करते हैं rather than to be in the part of management. Okay, the whole board of directors are non-owners रहे hardcore professionals. फैमिली मेम्बर्स अब प्रोफेशनल कोर्सेज करने लगे हैं फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स. ओके, promoters are encouraging professionals in the organization. Promoter more focus होते हैं on compliance to avoid loss of reputation. Role and leadership सही से clarity हो जाता है, clarify कर दिया जाता है, decided at board level. Owners are accepting and honoring opinion of managers. और ऐसा नहीं है कि उनका opinion matter नहीं कर रहा है जैसे पहले businesses चल रहे थे, family businesses. Now they are honoring the opinion of managers. Families' social and emotional issues are being satisfied by forming trust foundations which are separate from the business entity ताकि conflict ना हो. Okay, so ये part हमारा हो गया. Okay, next is corporate social responsibility, CSR, which is very important, you guys know. So CSR is the commitment of any business enterprise to do responsive business and contribute directly and indirectly to make positive and well-being of the society, particularly the less privileged people of India. So CSR क्यों किया जाता है आप जानते हो
कि डायरेक्टली हो या चाहे इनडायरेक्टली हो, बट टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी, लोगों का वेल बीइंग हो. ओके, पर्टिकुलरली यहाँ पे दिया गया है कि लेस प्रिविलेज्ड पीपल ऑफ कंट्री. ओके, CSR का मेन प्रिंसिपल क्या रहता है? 3 चीज़ों पे रहता है: कंसर्न, केयर एंड शेयर. सो नाउ वी विल जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस CSR इन इंडिया. उसके ऊपर के पार्ट्स आप एक बार खुद से रीड कर लेना. ओके, कॉर्पोरेट्स डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी इज नॉट न्यू. ये पहले से ही कंपनीज करते आ रही हैं. देयर आर मेनी कंपनीज यूज टू रन स्कूल्स, मेडिकल यूनिट्स, रोड, सैनिटेशन के लिए काम करते थे. दे यूज टू डू दीज वॉलंटरली सिंस देयर वॉज नो लॉ फॉर मैंडेटरी CSR. ओके, जब पहले नहीं भी था तब भी कंपनीज कर रही थी, बट उसके बाद CSR आया. कब आया वो सब यहाँ पे दिया गया है. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस. कब आया था? इन 2011. कॉल्ड, क्या बोला जाता था? नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेसेस. शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो NVGs. This was expected to provide guidance to business on what to constitute responsible business conduct. In order to align the NVGs with the Sustainable Development Goal and the United Nations guiding principles, the process of revision of NVGs was started in 2015. After revision and updation, the new principles are called the National Guidelines on Responsible Business Conduct. क्या है नया? NGRBC. As with the NVGs, the NGRBC has been designed to assist business to perform above and beyond the requirement of regulatory compliance. The primary rationale for the update is to capture key national and international development in the sustainable development agenda and business responsibility field that have occurred since the release of NVGs. सो यहाँ पे वही दिया है कि कैसे आया था, कैसे उसके बाद रिवीजन हुआ था. 2011 में आया था, उसके बाद 2015 में उसका रिवीजन हुआ था. ओके, सो यहाँ पे यही सब दिया गया. सम ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ NGRBC क्या क्या है, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं. सो आप इसको भी एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना, आपको समझ आ जाएगा. इफ़ नॉट यू कैन कमेंट सो दैट आई विल टेक दीज पार्ट्स ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द पार्ट्स इन classes. Next is sustainability reporting. Annual business responsibility report, that is ABRR, has been made compulsory. किसने compulsory कर दिया था? Securities and Exchange Bureau of India, that is SEBI, based on NVGs. National Guidelines on Responsible Business. So basically NGRBC है, उसके 9 थीमेटिक पिलर्स है जिसको प्रिंसिपल्स बोला जाता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं 9 प्रिंसिपल्स को एंड उनके कोर एलिमेंट्स को भी. ओके, यहाँ पे भी वैसे ही लिखा हुआ है कि ईच प्रिंसिपल इज अकम्पनीड बाय कोर एलिमेंट्स. ओके, सो वी विल स्टार्ट द NGRBCs के प्रिंसिपल. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज business should conduct and govern themselves with integrity and in a manner that is ethical, transparent and accountable. But before starting this, I will suggest कि ये जो 9 principle है, these are very important. Also आपको एक याद होना चाहिए कि पहला प्रिंसिपल कौन सा है, सेकेंड प्रिंसिपल कौन सा है. सो यू क्रिएट अ शॉर्ट फॉर्म ताकि आपको याद रहे ऑल द प्रिंसिपल, जो भी 9 प्रिंसिपल्स हैं. ओके, सो ट्राई टू क्रिएट अ शॉर्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपको सूटेबल हो. सो बिजनेस को कंडक्ट करना चाहिए विथ इंटेग्रिटी और सही एथिकल ट्रांसपेरेंट वे में काम करना चाहिए. द प्रिंसिपल इंश्योर्स एथिकल बिहेवियर इन ऑल ऑपरेशन, फंक्शन एंड प्रोसेस. सही से काम होना चाहिए, एथिकली काम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए. इज द बेसिक ऑफ बिजनेस दैट आर गाइडिंग देयर गवर्नेंस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इट कंसिडर्स दैट बिजनेसेस आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी. तो आप जानते हो कि बिजनेस तो एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है. वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं सोसाइटी के साथ, गलत तो नहीं हो रहा है. ओके, वो अकाउंटेबल होते हैं उन चीज़ों के लिए और कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस को. व्हाट इज़ द सेकेंड प्रिंसिपल? बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मैनर जो सस्टेनेबल एंड सेफ हो. गलत
गुड्स एंड सर्विसेज ना जाए जो हार्मफुल हो सके हो जाए, इसीलिए वो सब नहीं होना चाहिए. उनको सही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए जो सेफ हो. The principle emphasizes that business have to focus on safety and resource efficiency in the design and manufacture of their product. These products have to be manufactured in such a way by which it creates value by minimizing and mitigating adverse impact in the environment and society. So basically जो भी companies goods and services prepare कर रही है, so जितना कम से कम अगर एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है अगर सोसाइटी में कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ओके, थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, चाहे वो डिज़ाइन से लेके हो टू फाइनल डिस्पोजेबल. टॉकिंग अबाउट लाइफ साइकिल, आपने SCM में ये चैप्टर भी पढ़ा होगा लाइफ साइकिल का. This principle encourages business to understand every material sustainability issue across their product life cycle and value chain. Next, third principle क्या है? Business should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chain. This principle encloses all policies and practices that are about the equity, dignity, and well-being, and the provision of decent work for every employee that who are engaged within a business or in its value chain, without any discrimination and in a way that contribute to the diversity. The principle identifies the well-being of an employee and the welfare of his and her family. So basically जो भी employee कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी सही पॉलिसीज़ हो, प्रोसीजर्स हो, सही से वो काम कर सके, वेलफेयर हो उनका और उनकी फैमिली का, यही ये वाला प्रिंसिपल एम्फासिस करता है. Next principle is business should respect the interest of and be responsive to all its stakeholders. This principle recognizes the business operate in an ecosystem that consists of some stakeholders, being shareholders and investors, and their activities affect natural resources, habitat, communities and the environment. So आप जानते हो कि जो भी बिजनेस ऑपरेट करता है उसमें स्टेक होल्डर्स रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं. ओके, और उनके एक्टिविटीज़ अफेक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, हैबिटेट एंड कम्युनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट में. द प्रिंसिपल ब्रिंग इनटू द लाइट दैट बिजनेस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैक्सिमाइज द पॉजिटिव इफेक्ट एंड मिनिमाइज एंड मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑपरेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑन देयर स्टेक होल्डर्स. सो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी काम हो रहा है सब कुछ सही से हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, और जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम से कम हो सके. ओके, ना ही हो तो बेहतर है, बट अगर हो भी रहा कुछ तो मिनिमाइज कर सके उसको. नेक्स्ट प्रिंसिपल, business should respect and promote human rights. This principle identifies the human right, a right that have to be inherent to all human beings, and these guidelines are applied without discrimination. These human rights are considered to be inherent, inalienable, interrelated, interdependent and indivisible. This principle is inspired, informed and guided by the Constitution of India and the International Bill of Rights, and recognizes the primacy of the state's duty to protect and fulfill human rights. So basically ये focus करता है human rights को लेके. ऐसे ही और भी principles दिए गए, that is business should respect and make effort to protect and restore the environment. Okay, environment के लिए काम करना चाहिए, कैसे restore करें environment को. Business, when engaging in influencing and public and regulatory policy, should do so in the manner that is responsible and transparent. Business को promote करना चाहिए equitable development को, बिजनेस को एंगेज करना चाहिए और प्रोवाइड करना चाहिए जो भी गुड जो सही दे रहे, वैल्यू टू देयर कस्टमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. सो दीज आर द प्रिंसिपल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये 9 के 9 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए. सो एज आई टोल्ड, प्रिपेयर अ शॉर्ट फॉर्म और आप याद रखो ये 9 प्रिंसिपल्स को. Okay, next is activities expenditures which shall be considered as CSR. क्या क्या एक्टिविटीज और एक्सपेंडिचर को माना जाता है कि वो CSR एक्टिविटी है. CSR टच अपॉन सोशल इशूज सच एज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय से रिलेटेड या एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन से रिलेटेड होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर, ये सब होता है. एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय कंपनीज टू एड्रेस बेसिक इशूज पर्टेनिंग टू, चाहे वो हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, नीड्स ऑफ द
impoverished communities, for the promotion of skill development, capacity building, and inclusive growth of society are all sustainability activities. Okay. CSR activities which can be taken up have specifically mentioned in Schedule 7 of the Companies Act में मेंशन किया गया है. द शेड्यूल कंटेन, क्या क्या कंटेन करती है, जितने भी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ होते हैं, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ होते हैं जो पॉसिबल है. ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है. Okay. However, government has clarified that the activity should be broadly interpreted. That is, when it says education, it can be interpreted as education हो, चाहे वो training हो, चाहे skill development of any kind. Okay. So क्या क्या एक्टिविटीज़ अब हम पढ़ेंगे कि नहीं कंसिडर की जाती हैं CSR एक्टिविटी को. ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एक बार कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ नहीं कंसिडर किए जाएंगे CSR में. Publicity activities with only intention to advertise product and services. मेन आपका इंटेंशन है कि अपना गुड्स एंड सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सको बाय दीज एक्टिविटीज़, तो ये नहीं माना जाएगा CSR एक्टिविटीज़ को. ओके. बस कंप्लाई करना ऑफ रेगुलेशन, गवर्नमेंट ऑर्डर, एम्प्लॉय बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, आप अपने एम्प्लॉय के लिए ही कुछ कर रहे हो तो वो सोसाइटी के लिए, बाहर के लोगों के लिए थोड़ी हुआ, आप अपने ही एम्प्लॉय के लिए वो करो, वो CSR नहीं माना जाएगा. एनीथिंग डन इन फिजिकल एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंट्रीब्यूट करना फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, वो भी CSR नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट स्टेप्स क्या है इन CSR इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस. फर्स्ट, determining thrust area. An area has to be selected out of a broad list so that the domain experienced by the company which will help in better service. Thrust area is not a prerequisite and a company can spend money in diverse areas, but this will narrow down the targets. A company may decide that it will for a particular year focus on primary education for poor children. सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा CSR एक्टिविटी करना चाहते हो, कौन से एरिया में जाना चाहते हो. ऐसा तो नहीं है कि आप सब कर लोगे एक ही बार में. तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है आप वो डिसाइड करते हो. Next, identification of projects. Once the company has decided an area of work, it has to identify the project. Keeping the thrust area as above, the company has to find out which primary school and what is to be done. It may be construction, repair of school building, distribution of books, dresses, pay for meals, give cash, scholarship, etc. So basically पहले आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है. अब उस पर आप कैसे करोगे, क्या आपका मेन ज़रूरत है, क्या आपको कैसे करना है, वो सब डिसाइड होता है. नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स. When companies decide to do something for their society under CSR, it may not be possible to do with the standalone infrastructure. बहुत बार क्या होता है कि अगर कंपनी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उनका अकेले CSR प्रोजेक्ट करना ईजी नहीं होता है. सो इन दैट केस वो कोलैबोरेट कर सकते हैं विद पार्टनर्स या किसी एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो या NGO हो. या तो A, with other companies. Sometimes one company may not be able to implement the project on its own and may decide to go with other similar companies, जैसे मैंने बताया. या तो with government under PPP model. Government may not be able to reach out to every corner due to lack of resources. NGOs and voluntary organization may be roped in to do the job with government support. With specialized agencies, companies sometimes implement project through specialized agencies funded by them. So ऐसे कर सकती है. क्या क्या स्पेशलाइज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हो सकती है, चाहे वो NGO हो, ट्रस्ट हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, महिला मंडल्स हो, समितिज हो, ओके, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हो गवर्नमेंट के. ऐसे स्पेशलाइज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू हो सकता है. नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट. इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट कैन बी ऑफ 2 फेसेस के हो सकते हैं. इवैल्यूएशन बिफोर मेकिंग एन एक्सपेंडिचर, इवैल्यूएशन आफ्टर मेकिंग एन एक्सपेंडिचर. CSR का जो एक्सपेंडिचर है उसको करने से पहले का इवैल्यूएशन एंड बाद का इवैल्यूएशन. सो अब इनको हम इलैबोरेट करेंगे और समझेंगे. इवैल्यूएशन बिफोर मेकिंग द एक्सपेंडिचर.
This is also called due diligence of CSR project after a shortlisting have been made. Normally, companies make a shortlisting on the basis of project proposal available to the company. The purpose of due diligence is to decide whether the company is ultimately taking up the project or making the expenditure. Okay, कौन सा किस एरिया में वो करना चाहते हैं CSR प्रोजेक्ट, उसका नेचर देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, ओके, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देखेंगे, बेनिफिशियरीज, टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, ये सब देखा जाएगा. हाउ इवैल्यूएशन इज डन. Normally, the company spending on CSR will make a team with 2 to 3 officers who will inspect the documents submitted or while visiting the site office of the implementing agencies. Okay, they will have to make a checklist of issues related to project and agency. So क्या issue है उससे related वो एक checklist बनाएंगे. This committee will make a structured report. Normally, a project report is prepared on the CSR project which contains all information about the project right from the concept of implementation mechanism. This is sometimes prepared by independent professional having domain knowledge. So basically एक project report बनाया जाएगा starting from implementation, कहाँ से implement होगा, कैसे होगा, यही सब किया जाएगा. ऐसे ही evaluation किया जाता है. So आप इसको read कर सकते हो एक बार. Okay. Implementation of CSR project. Direct implementation by the company. There are some large companies and their budgets for CSR is also very high. कुछ बड़े companies हैं जो आप जानते भी हो, वो कंपनीज के बजट भी CSR के लिए हाई रहते हैं. These companies have adequate manpower and execute the CSR project. So उन कंपनीज, ये बड़ी कंपनीज है, उनके पास उतना एडिकेट मैन पावर है कि वो सही से CSR प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके. दे हैव सेपरेट वेल ऑर्गेनाइज CSR डिपार्टमेंट इन द कंपनी. बहुत सारे ऐसे रियल एग्जाम्पल्स हैं. ओके, evaluation of the project in such companies is limited to the project itself, but when the company decides to implement through implementing agency, it has to evaluate the agency also in addition to the project. To understand CSR evaluation, we will discuss the issue to be checked for the project and also the implementing agencies. Advantage क्या है अगर direct implementation किया जाए by the company only. क्या रहता है कि flexible रहता है, small decisions company खुद ही लेती है, बेटर सुपरविजन हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है, जल्दी से जल्दी डिसीजन मेकिंग हो जाता है, लेस कोऑर्डिनेशन और नो कोऑर्डिनेशन विद थर्ड पार्टीज. ओके, और कॉस्ट भी कम लगता है. डिसएडवांटेज क्या है, मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट, डोमेन नॉलेज नहीं होने का बायसनेस हो सकता है. ओके, नेगेटिव पॉइंट को नहीं डाला जाएगा, डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं. ओके, अब थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन से क्या है. थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जैसे मेंशन किए गए थे ऊपर. व्हेन द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अपार्ट फ्रॉम द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट पैरामीटर्स मेंशन अबव, द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इवैल्यूएटेड व्हिच कैन बी डन विथ फॉलोइंग चेक्स. ओके, कैसे कर दिया जाता है थर्ड पार्टी का इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हो सकता है. डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, इंस्पेक्शन होता है प्रोजेक्ट साइट का, ट्रैक किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिशियरी का फीडबैक लिया जाएगा, स्पॉन्सर्स का फीडबैक लिया जाएगा, इंटरव्यू होगा ऑफ द पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटेशन. ओके, इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, एक्सपर्टीज़ है उनके पास, बायसनेस नहीं होगा, नेगोशिएट कर सकते हैं कॉस्ट को, बेटर सुपरविजन होता है. और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, मे बी मोर सुपरविजन, लैक ऑफ डोमेन नॉलेज भी हो सकता है, बायसनेस भी हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉपर अकाउंटिंग ना हो ऐसा भी हो सकता है. सो ये सब डिसएडवांटेज है. क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इम्प्लीमेंटेशन में कि कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, फाइनेंशियल मिसमैच हो सकता है, सही लोग मिले हैं कि नहीं उस काम के लिए, इंटरनल रेफरेंसेस भी हो सकती हैं, सीरियसनेस कम हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम फेस किया जाता है. एक्सटर्नल क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, सोशल प्रेशर हो, पैसा को डाइवर्ट करना, फ्रॉड हो सकता है, ये सब होता है. ओके, नेक्स्ट इवैल्यूएशन आफ्टर मेकिंग द एक्सपेंडिचर. सो हमने पहले का पढ़ा बिफोर एंड नाउ वी विल स्टडी आफ्टर. Diligence of CSR initiative is important to ensure effective implementation of the plan strategy and to determine future action plan. So basically जो भी डिसाइड किया गया था वो सही से हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, इस आफ्टर वाला चीज़.
Each company can design measuring strategies based on their selected CSR focus areas. Some basic indicator to measure different CSR areas are elucidated as following. So यहाँ पे कुछ indicators दिए गए हैं जिससे measure किया जा सकता है CSR areas को, basically through monitoring जो periodically होना चाहिए, collecting of data, क्या performances हो रहे हैं, उस एक्सेस करना, जो भी प्रोग्रेस है वो सही से हो रहा है कि नहीं, करेक्टिव एक्शन लेना अगर कुछ सही से नहीं हो रहा है तो, और फाइनल चेक करना. ओके, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट असेसमेंट. एनी CSR प्रोजेक्ट एक्टिविटी शुड हैव सम इम्पैक्ट, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो. इम्पैक्ट रेफर्स टू द सक्सेस ऑफ द एक्टिविटी विथ रिलेशन टू द टारगेट. जो टारगेट हमने सेट किया था कि हमको ये CSR एक्टिविटी करना है, उनके लिए उतना सही से हो रहा है कि नहीं, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं, यही सब चेक किया जाता है. It is confined to the target beneficiaries. In order to know the impact, an impact analysis study भी किया जाता है, is supposed to be made, which would compare the achieved result with desired result. क्या desire था हमें और क्या achieve हुआ है. In order to get real picture, it is the following issues need consideration. Should preferably done by independent agency को करना चाहिए impact का assessment. फोकस ऑन इम्पैक्ट ओनली, इमिडिएटली करना चाहिए आफ्टर द बेनिफिट दिया गया है, एंड शुड बी डाटा बेस्ड. नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट. सो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस बाय विच नीड्स ऑफ द फ्यूचर इज फुलफिल्ड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर. सो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है जिससे नीड तो फुलफिल हो रहा है बट जो फ्यूचर के नीड्स है उसको हार्म नहीं किया जाए. ओके, दिस इज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट. इसके 3 अप्रोचेज होते हैं कॉमनली, जिसको बोला जाता है ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच. ओके, पहला है इकोनॉमिक, दूसरा एनवायरमेंटल एंड तीसरा सोशल. इकोनॉमिक अप्रोच, द करेंट डिसीजन शुड नॉट इम्पेयर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड्स. फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड्स को खराब नहीं होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट अप्रोच. इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल अप्रोच क्या है, जो भी स्केर्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज स्केर्स हैं, शुड बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर विच वुड इंक्लूड प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, चाहे वो वाटर हो, चाहे माइंस हो, चाहे फॉरेस्ट हो. इंडस्ट्रीज शुड यूज मिनिमम नेचुरल रिसोर्सेज, जितना वो मिनिमम से मिनिमम यूज कर सके. एनी इंडस्ट्री डैमेजिंग द एनवायरनमेंट थ्रू एफ्लुएंट डिस्चार्ज शुड बी अवॉइडेड और मिनिमाइज, जिसको बोला जाता है एक प्लैनेट अप्रोच भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज सोशल अप्रोच. द इंडस्ट्री इज फॉर द सोसाइटी. सो सोसाइटी का वेलफेयर के लिए भी उनको काम करना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए भी काम करना चाहिए ऑफ द पीपल. इसको पीपल अप्रोच भी बोला जाता है. द अबव 3 अप्रोच इज कॉल्ड 3P अप्रोच ऑल्सो. इसको 3P अप्रोच भी बोला जाता है बिकॉज प्रॉफिट, प्लैनेट और पीपल है यहाँ पे. इसमें क्या क्या स्टेप्स है, आइडेंटिफाई करना क्या प्रॉब्लम एरियाज है, थ्रस्ट एरिया फॉर सोल्यूशन को सेट करना, टारगेट और गोल को सेट करना, इवैल्यूएट करना, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना, प्लान करना कैसे करना चाहिए, जितने भी टूल्स है टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करना, इनोवेट करना आइडिया और प्रोसेसेस को, शेड्यूल करना एक्शंस को. सो ये आपको एक स्टेप दिया गया है. फ्यू ऑफ द एरियाज वेयर एक्शंस कैन बी टेकन. चेंज प्रेजेंट प्रोसेस टू ऑल्टरनेटिव प्रोसेस में चेंज किया जा सकता है. कन्विंस एंड मेक द कम्युनिटी टू रिड्यूस वेस्ट, यूज ऑल्टरनेटिव सोर्स. ओके, कंट्रोल करना डिफॉरेस्टेशन एंड एनकरेज करना फॉरेस्टेशन को, रिड्यूस करना डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट इन द एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना, कार्बन एमिशन को मैनेज करना, ये सब दिया गया. नेक्स्ट यहाँ पे आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं कुछ सस्टेनेबल मैनेजमेंट के, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे दिया गया है. सो आप इसको एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना एंड यू कैन सी द चैप्टर इज ओवर. एंड आई विल सजेस्ट प्लीज़ डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ जितने भी चैप्टर हो रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. इसीलिए क्वेश्चंस करना एंड ऑल्सो स्पेशली पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करना चाहिए. ओके, सो डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस जहाँ से भी आप कर सकते हो एंड इंक्लूडिंग द पास्ट ईयर क्वेश्चन. सो दिस इज इट फॉर टुडे. ऑल्सो आई हैव अपलोडेड ABC एनालिसिस फॉर 2 सब्जेक्ट्स, और भी सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो. सो दिस इज इट फॉर टुडे. विल बी कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर. थैंक यू.